Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing great. I am Amreen Hamad, your course instructor, and I welcome you to yet another lecture, e-lecture of English. And the previous week we discussed lesson number 3, that was why boys fail in college. Till now we have discussed number of reasons behind the failure of college. Now today we will start our lesson from page number 10. Dear students, I am on page number 10. I advise you people that you also open up your book so that you may follow line by line. This is page number 10 and paragraph number 2. You can say the first paragraph because the above lines are actually the part of the previous paragraph. So we will start our lecture from there are always a goodly number of uh, undergraduates whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness and so on. Now, before starting the lecture, let me remind you that your attendance is very important. There is a form, a Google form is attached to the lecture. So what you have to do, you have to fill it and submit it. In this way we will come to know that how many of the students are following the lectures or they are listening it. Plus it will be easier for us to maintain the record of your attendance. Another important thing is that what you have to do, you have to subscribe the channel so that you would got notified about the upcoming lectures which we load on daily basis. Plus if any of your class fellow, if she is in your contact, so you must tell her also, if she doesn't know, in case that she should also go through all the lectures through the YouTube channel, and ask as many students as you can to subscribe the channel and to watch the lectures. Before, this is what i I have to remind you. Now we will start our lecture, and this is page number 10, paragraph number 1. There are always a goodly number of undergraduates whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and literary so called activity. Now, writer is again telling you another reason of the failure of college boys. Here you can see that the word perverted का मतलब होता है बेटा करप्ट हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अंडर ग्रेजुएट्स, मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो उनकी जो अटेंशन होती है इट गेट्स डाइवर्ट, वो डाइवर्ट हो जाती है, डाइवर्टेड टू व्हाट, to mostly athletics, sports, or to number of other activities, co-curricular activities. Like they are engaged in drama, they are engaged in doing tableaus, and number of other co-curricular activities or sports, but they are not giving much attention to their studies. Now, here I must tell you that co-curricular activities are also very important. They play a vital role in the mental and physical growth of yourself. But within a college, your prime concern is your studies. Once you complete your study, once you give due attention to your studies, then you can also enjoy, or you can also participate in the all sort of co-curricular activities. Let it be sports, let it be drama, let it be singing, and anything you like. ठीक है, तो पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पहले आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपकी स्टडीज़। तो वो भी ये कह रहे हैं राइटर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो तवज्जो है वो स्पोर्ट्स वगैरह की तरफ या लिटरेरी एक्टिव, सो कॉल्ड लिटरेरी माने वो इतनी लिटरेरी होती नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती हैं बच्चों की तरफ से और बच्चे उसमें इनग्रोस्ड हो जाते हैं। All of these features of college life have their place and should receive the support of those students who are interested in them. ना राइटर भी वही बात कह रहे हैं बेटा जो अभी मैंने आपसे कही कि all these things, these co-curricular activities and all these activities apart from the studies are very much important and they are the part of the life. ये कॉलेज लाइफ का एक पार्ट होती है एंड दोज स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड दे मस्ट टेक पार्ट इन इट, उन्हें लेना भी चाहिए हिस्सा इनमें। लेकिन इन माई एक्सपीरियंस, राइटर सेइंग, in my experience, the awakening of a clear judgment as to what the college is for is not as difficult as it often supposed.
नाउ राइटर कह रहे हैं लेकिन कम से कम आपके पास एक क्लियर जजमेंट हो, आपका एक क्लियर व्यू हो, आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज जो है वो किस चीज़ के लिए, कॉलेज बेसिकली टू प्रोवाइड यू स्टडीज। सो यही राइटर कह रहे हैं, और राइटर कह रहे हैं ऐसा सोचना, ऐसी जजमेंट लेना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट यू गेट टू कॉलेज, यू पे टू मच अमाउंट ऑफ मनी, यू आर स्ट्रगलिंग थ्रू टू मेक योर करियर. So the main concern of the college is to give you degree, to give you education. So you should also give due attention to your education. If a boy is too much interested in these side shows, see, the writer is saying that these activities are the side shows, not the primary concern of the college. He ought to get out of the main tent and become professional. अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, आप बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हैं और आपका दिल चाहता है कि आपको गाना ही है, तो टेक देम एज प्रोफेशन. राइटर इज एडवाइसिंग दैट यू कैन नॉट be the part of both the activities together. आप इतने ही वेहेमेंटली जो है वो अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है परसू कर रहे हैं और इतना ही ज़्यादा आप एजुकेशन में अपनी तवज्जो दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है. तो राइटर इज सेइंग दैट इफ़ यू आर वेरी मच कंसर्न, यू आर पैशनेट अबाउट योर पैशन और अबाउट योर को करिकुलर एक्टिविटीज़, any talent or any activities you are in, so what you have to do, you have to quit the education and you have to pursue that career as professional. आपको क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बजाय ये कि आप कॉलेज जाएं और सारा दिन क्रिकेट खेलें, इससे बेहतर है कि आप क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट कर लें. आप क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन ले लें और वहाँ पर आप अपना जो पैशन है उसको फॉलो करें. बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, and if reasoned with by a friend who knows youth and understand the importance of college opportunity, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. Now see, the writer is saying that this problem could be solved by counseling. यानी कि अगर कोई ऐसा बच्चा है, बच्चों को लगता है ये उनका पैशन है या वो सर्टेन टाइम डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर उनको कोई ऐसा उनको कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाए जो उनकी काउंसलिंग करे, कोई ऐसा फ्रेंड जो कि बहुत ज़्यादा उसको अंदाज़ा हो कि कॉलेज अपॉर्चुनिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो उनको ये रियलाइज़ करा सकता है कि एथलेटिक्स हो गए या ये दूसरे स्पोर्ट्स हो गए, दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज देयर स्टडीज़ आर, बिकॉज दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैम. See how beautifully writer is written. Here they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. वो अपने पाँव को उखड़ने नहीं देंगे एथलेटिक्स की वजह से, ठीक है. यानी कि अगर कोई उन्हें अच्छा मशवरा दे, अच्छे से समझाए, तो वो अपनी तवज्जो जो है दोबारा पढ़ाई की तरफ कर लेंगे. I do not think that this sort of thing is as serious a reason for failure as do some of the critics of our colleges who see things from the outside and at a long range. Now, writer is sharing his own opinion. He's saying that according to me, this problem is not very serious. Why? Because it could easily be tackled with bit of counseling. And he believed that people who say that this problem is very serious and this is a serious issue behind the failure of boys, so writer is of the opinion that such people are actually don't have much idea about the college life and they are actually out from the range of the college. I'm starting the next paragraph here. A few lazy bluffers drift into college and usually drift out again. Another very important and very common reasons behind the college failure and behind the dropping of student from the college. Writer is saying that there are few people who they just drift into the college. उनका कोई ख़ास एम नहीं होता काम करने का, या उनके पास कोई बहुत पैशन नहीं होता कि जनाब हमने कॉलेज जाना है और मैं ये बनना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ. कॉलेज फॉर देम इज़ जस्ट अ रूटीन. अच्छा जी स्कूल पढ़ लिया तो चलो जी कॉलेज चले जाते हैं, अच्छा जी कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, ठीक है. तो उनके पास कोई सेट प्लान नहीं होता अपनी ज़िंदगी के लिए. तो जिस तरह वो विदाउट एम जो है वो अंदर आ जाते हैं कॉलेज के, इसी तरह वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ड्रिफ्ट आउट हो जाते हैं, खुद ही खुद निकल जाते हैं, ज़ाहिर है क्योंकि वो स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते. नाउ यू मस्ट नो दैट only that a student will focus on the studies
who has a plan for him, who has passion for the study, who has some aim and objective in his life, and to achieve those aim and objectives, he will struggle, he will study very hard. but such students who just get admission like that, अच्छा जी चले कोई बात नहीं कॉलेज में ले लेते हैं, या अक्सर जो गर्ल्स होती है मोस्टली वो बोलती हैं अच्छा घर में बैठ के करेंगे, कॉलेज में ही एडमिशन ले लेते हैं, तो कोई उनके पास कोई गोल नहीं होता, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ, द सेम इज राइट इज सेइंग, क्योंकि उनके पास कोई सीरियस इंटरेस्ट नहीं होता लाइफ में, कोई उनकी जो राह होती है, कोई भी राह वो मुतय्यन ही नहीं होती है कि मुस्तकबिल में उन्होंने क्या करना है। एंड सम ऑफ देम नेवर विल, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी में कभी बनाते भी नहीं अपना कोई सीरियस इंटरेस्ट। इट इज़ यूजुअली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड फॉर अ रीज़न एंड फाइंड आउट बाय द एक्सपीरियंस हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर अ लेजी प्लेटफॉर्म। अब वो कह रहे हैं राइटर, ऐसे लोगों को आप समझा के काउंसल करके ठीक नहीं कर सकते, ना ही ऐसे जो स्टूडेंट है वो खुद को ठीक करना चाहेंगे। वाई? बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर लेजीनेस, क्योंकि वो लेजी है, कोई उनके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो क्योंकि खुद को ग्रूम भी नहीं करना चाह रहे हैं तो वो खुद पर मेहनत भी नहीं करेंगे। द ओनली थिंग हु कैन टीच देम इज़ द वर्ल्ड इटसेल्फ, द कोल्ड फेस ऑफ वर्ल्ड शुड बी फेस्ड बाय देम। उन्हें दुनिया के समंदर में बस फेंक देना चाहिए, और जब ज़िंदगी के थपेड़े उनको लगेंगे, ज़िंदगी खुद उन्हें सिखा देगी। ज़िंदगी की तलखियाँ जो होती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि वो इंसान को जो तजर्बा देती है वो बहुत कुछ इंसान को सिखा देता है। तो राइटर कह रहा है ऐसे लोगों को सिर्फ क्या करना चाहिए, ज़िंदगी के हवाले कर देना चाहिए, दुनिया को फेस करें वो, ठीक है, और फिर उन्हें पता पड़ेगा कि दुनिया में लेज़ी लोगों की कितनी डिमांड है। यहाँ सेटरिकली राइटर इज़ एक्चुअली सेइंग दैट द वर्ल्ड विल रिजेक्ट सच लेज़ी पीपल। ऐसे लेज़ी लोग या ऐसे वो लोग जिनमें कुछ करने का जज्बा नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या है, दुनिया रिजेक्ट कर देगी। Now on the okay, sorry. It is usually yes. Sometimes they learn their lesson and return to do first rate work. Certain time क्या होता है, अब राइटर कह रहे हैं कभी कभार तो क्या होता है कि ये जल्द ही लेसन सीख लेते, सबक सीख लेते हैं, और दोबारा से किस में आ जाते हैं, फर्स्ट रेट वर्क करना शुरू कर देते हैं, अपनी पढ़ाई पे मेहनत करेंगे या कोई और जो भी काम कर रहे हैं उस पर मेहनत करेंगे। बट द burden of proof is always on them to show that they mean business। लेकिन पता है क्या, हमेशा ऐसे लोगों को अपने आप को प्रूफ करना होगा, अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करना होगा, और उन्हें ये दुनिया को बताना होगा कि जनाब वो जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत सीरियसली कर रहे हैं, या वो सीरियसली कुछ करना चाहते हैं। और ये प्रूफ कौन देगा, वो खुद ही देंगे। खुद कैसे देंगे? बाय शोइंग देयर इंटरेस्ट, इन जेन्युइन इंटरेस्ट इन एनीथिंग दे लाइक, लेट इट बी स्टडीज़ और एनी वर्क आउटसाइड द कॉलेजेस, ठीक है जी। तो वो उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे, बहुत मेहनत से काम करेंगे, तो दुनिया उन पर रिलाई करेगी और वो समझेगी कि हाँ इन्होंने ज़िंदगी को सीरियस लेना शुरू कर दिया है। Now I am on last paragraph. This is page number 10 if you have just joined. Okay. On the whole, the problem that the college dean faces calls for about the same diagnostic ability as the physicians. That is something very important. Now, being a college administrator or being a teacher, this is the responsibility of the teacher that he should or she should diagnose the problem with the student। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा राइटर जो है वो टीचर पे या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली कैसी होती है, उसकी जो जिम्मेदारी होती है डायग्नोस्टिक की जिम्मेदारी, वो तकरीबन फिजिशियन जैसी ही होती है। फिजिशियन मतलब डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस, यू वुड गो टू द डॉक्टर एंड यू वुड से दैट आई बीन फीलिंग दिस एंड दैट, देन डायग्नोस्टिक वुड बी डन बाय द फिजिशियन और द डॉक्टर। डॉक्टर ये बताएगा, पहचान के जान के तशखीस करेगा कि आपको क्या मर्ज़ है। सेम यही काम जो करता है वो किसी भी कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन करता है, कोई टीचर करता है। वो देखता है कि मेरा बच्चा जो है, मेरा स्टूडेंट जो है वो लैग कर रहा है, उसकी बहुत अच्छी जो है वो रिज़ल्ट नहीं आ रही है, तो ही विल बी सीइंग दैट what are the causes behind it, क्यों ये बच्चा जो है वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। he is helping the young man under him to see life steadily and see it whole। वो उन बच्चों पर मेहनत करता है, उनकी हेल्प करता है ऐसे बच्चों की, और उन्हें मदद करता है कि वो ज़िंदगी को स्टडीली देखें और ज़िंदगी को पूरे से तरह से एक्सपीरियंस कर सके। इफ़ ही कैन सेव बॉयज़ फ्रॉम फेलियर थ्रू फूलिशनेस, sickness and sin, he is doing his part of the job।
very beautiful lines. Writer is saying that अगर एक टीचर अपने बच्चे को फेल होने से बचाता है, किसकी वजह से? फूलिशनेस की वजह से, बेवकूफ़ी। बताया ना, बच्चे बहुत बेवकूफ़ होते हैं, कभी इधर अपनी तवज्जो डाइवर्ट कर लेते हैं, या कभी और कुछ मुश्किलात होती हैं उनके साथ, या सिकनेस, या वो बीमार हैं, और अगर टीचर उसको डायग्नोस कर रहा है कि हाँ ये बच्चा इसलिए काम सही नहीं कर रहा क्योंकि ये बीमार है, और वो उसके पेरेंट्स, या वो मसला हल करता है किसी भी तरह पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके, बच्चे को डॉक्टर्स के दिखा के, जो भी वो तरीक़ाकार अपनाए, एंड सेन, या कोई ना कोई मसला है, या कोई ना कोई वो गलत राह पे चल निकला है, अगर वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को बचा लेता है इन फेलियर से, जो इन तमाम चीज़ों की वजह से होती है, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब, ही इज़ एक्चुअली डूइंग इट वेरी ऑनेस्टली. So that is a good teacher. So we have ended the chapter. Tomorrow we will inshallah start its exercise, and then we'll see important words or difficult words. I'll be explaining these words, and then we'll do answer and question. So till tomorrow, Allah Hafiz, take care, and stay tuned to the channels. Regularly go through all the lectures and mark your attendance. Allah Hafiz.